Hey everyone, welcome back. So GATE exam is losing its popularity. Well, I'm not saying this, the data is actually saying this. Compared to last year, 2021, the number of students appeared in especially computer science in GATE exam in 2022 has been drastically reduced by 22%. So that is more than 1/5 of the students have opted out of the GATE computer science paper. So let's find out in this video that why such things are happening and also where the students are shifting their mindset and their focus. Let's entirely discuss in this video. But before that, if you're new to this channel, make sure you hit the subscribe button and also do like this video. Well, the entire statistics I'll be talking about in this video will be purely based on computer science. So there was a time when more than lakhs of students used to appear in GATE computer science paper. If you see 2015, 2016, 2017, 18, 19, बहुत स्टूडेंट्स ने गेट सीएसई में अपीयर करते थे, बट नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग. द मेन रीजन बैक देन was the lack of placement inside the college. But before that, if you are a GATE 23 aspirant and you want to be a topper just like these GATE 22 toppers, then there's a great offer from Unacademy which is hosting the biggest scholarship test which is called Unacademy Ultra Combat. Completely free है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, नीचे लिंक को एक बार क्लिक कर लेना एंड मेरा कोड यूज करो मनीष M10. यू गेट द फुल एक्सेस टू Unacademy Ultra Combat टेस्ट जो कि एक 60 मिनट्स का एग्जाम होगा एंड सिर्फ 30 क्वेश्चन है. तो यू कैन जज योर गेट एज वेल एज EAC प्रिपरेशन. ये 5 अलग अलग डिफरेंट ब्रांच के लिए होगा, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड आप अगर एक टॉप रैंकर्स के बीच में हो तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगा फ्रॉम Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी गेट 23 प्रिपरेशन के लिए. एंड ऑल्सो यू गेट अ ह्यूज चांस टू विन योर मैकबुक, योर आईफोन, योर आईपैड, JBL स्पीकर, सैमसंग स्मार्ट वॉच. एंड इफ यू आर नॉट अ टॉप रैंकर, देन इफ यू आर अ लकी विनर, then you can get amazing Amazon vouchers worth ₹5,000. And also another great thing कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन आएगा जो कि काफी सिंपल है. सो यू जस्ट टेस्ट योर प्रिपरेशन, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर एप्टीट्यूड स्किल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकली क्यूरेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप फैकल्टीज ऑफ Unacademy. So why are you waiting? Just participate in this Unacademy Ultra Combat test which is going to happen in 24th of April from 11 AM. It's a live test. आप मोबाइल से भी ये टेस्ट दे सकते हो. Just click on the link in the description and use my code MANISHM10 to get free access to this Unacademy scholarship test. Well, let's talk about my example. I was a student of a tier 3 college. It was a government college in West Bengal, and if you know about West Bengal, the number 1 college is obviously Jadavpur in terms of engineering. The number 2 is IIEST, which is in Shibpur. Now the immediate best college can be considered was my college, that was KGEC यानी कि Kolani Government Engineering College, and the next one is Jalpaiguri Government Engineering College, which is called JGEC. These are the colleges apart from IIT Kharagpur and NIT Durgapur. But with all of that reputation our college got, more than 50% of the entire students inside the college remain unplaced. Why? Because only a single service-based company, TCS, has visited our campus. And they took I think around 180 to 200 students. And उसके अलावा एक दो छोटा छोटा स्टार्टअप आए थे, उसके अलावा कुछ कंपनीज नहीं आए. तो जो लोग अनप्लेस था उनके पास ऑप्शन क्या है, इधर दे कैन गो टू सम पूल कैंपस हायरिंग जो कोलकाता में होता था, कुछ अलग कॉलेज में होता था कि विप्रो ने पूल कैंपस हायरिंग किया था, IBM ने किया था. तो दैट वाज एन ऑप्शन. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज क्रैक गेट एंड उसके बाद तुम कोई IIT में चले जाओ, IIIT में जाओ, NIT में जाओ. Obviously आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लगी. The mindset of all the students were placement and the mindset of all the students are still placement. तो अगर कोई कॉलेज पे प्लेसमेंट नहीं होता है तो ऑप्शन क्या है? Obviously they will choose GATE as the second option. GATE was not the first option. Well, there are very few students, I can say 1 to 2% or maybe even less than 5% of the students have that mindset कि मैं हायर स्टडीज करूंगा, मैं रिसर्च पे जाऊंगा. Generally, majority of the students had placement in their mind. ये मेरा भी था, मैं जब बीटेक में था मेरा भी था. I'm not denying the fact, and सबके पास, majority student के पास ये होता है. So now think about that situation in our college and think about the situation in some other lower tier college or maybe lower tier private colleges. उसमें तो कुछ कॉलेज ऐसे स्कैम पे चलते कि कॉलेज की कुछ ये प्लेसमेंट डेटा देते, स्टूडेंट्स एडमिशन लेते, उसमें जाके देखते कि भाई इसमें तो सिर्फ डिग्री मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना तो कोई पढ़ाई होता है, ना तो कोई ठीक ठाक लैब की फैसिलिटीज़ होता है, प्लेसमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होता है. सो व्हाट ऑप्शंस दे हैव? दे कैन प्रिपेयर ईदर फॉर गेट और रिमेन अनप्लेस्ड. So that's why the GATE exam was so popular back then. But after that, COVID came in 2020 and the situation has been changed
drastically. The hiring of the company started at a rapid rate and because of remote work, Amazon ने बहुत hiring start की थी, Microsoft ने बहुत hire किया था, intern चाहे full time offer बहुत दे दी थी, गूगल ने एक्सटेंसिवली हायर किया था एंड अभी भी कर रहे हैं, ये सारे कंपनीज अभी कर रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर सेटिंग अप द न्यू ऑफिसेस इनसाइड इंडिया एंड देयर इज अनदर रीजन दैट मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर एक्चुअली हायरिंग एंड यू नो अबाउट यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया में कितनी इंडिया बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए, तो दे आर हायरिंग अ लॉट, दे आर हायरिंग लाइक हेल. So that's why there are big job opportunities in those startups, in those MNCs, in those FANG companies. तो why people are going for Gate? आप मेरे को ये बताओ कि आपके पास अगर 1-1.5 लाख की कोई नौकरी है, यू नो इफ यू आर गेटिंग इनटू टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट स्टार्टअप में चले जाओ, यू विल इजीली गेट अराउंड 1.2 लाख टू 1.5 लाख एज अ फ्रेशर. तो अगर आपको वो सैलरी हाथ में आ जाए एंड द सेकेंड ऑप्शन इज आप कोई 12,400 लेके कोई हायर स्टडीज में जाओ, आप क्या चूज करोगे? 99% of the students will choose that job option. Startups are coming, MNCs are coming, hiring हो रहा है बहुत एंड जॉब मिल रहा है स्टूडेंट को, वो भी ऑफ कैंपस से. अगर आपकी कॉलेज पे कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कैंपस से बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है. आजकल ऑफ कैंपस में जॉब मिलना इज समथिंग रियली ईजी. आपको अगर एक लिंक्डइन प्रोफाइल है तो लिंक्डइन में आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हो. मैं आपको शायद कोई नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल में बात करूंगा कि लिंक्डइन यूज करके आप कैसे बहुत सारे जॉब ऑफर पा सकते हो. आई हैव बीन यूजिंग लिंक्डइन फॉर द पास्ट 1 to 1.5 years एक्सटेंसिवली. मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल 2 साल से ज़्यादा थे, बट आफ्टर एक्सटेंसिवली यूजिंग लिंक्डइन, आफ्टर बिल्डिंग माई ओन प्रोफाइल, आई हैव अराउंड 13,000 फॉलोअर्स. तो आपकी अगर कोई पर्सनल ब्रांड है एंड आप कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज़ शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम दो स्टार्टअप फाउंडर्स और दोज टेक्निकल रिक्रूटर्स इन दोज MNC. मेरे पास अभी भी जॉब ऑफर आते हैं अमेजन से, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, जो कि आपको एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए उसके बाद आपकी रेज्यूमे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाके आपको एक कॉल मिल सकता है. वो इंटायर प्रोसेस आपको मिल रहा है एक डायरेक्ट मैसेज पे. दैट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन. एंड इफ यू आर नॉट इन लिंक्डइन, दैट इज ऑल्सो ग्रेट. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दोज कंपनीज इन देयर कंपनीज कैरियर पेज. आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो माइक्रोसॉफ्ट कैरियर पेज पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो डायरेक्ट, आपकी रेज्यूमे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी कोडिंग चले आएगी. तो 2-3 मंथ के अंदर आपकी एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. कुछ कंपनीज में तो, स्टार्टअप में तो 2-3 हफ्ते में भी आपकी एंटायर हायरिंग हो जाता है. उसके साथ बहुत सारे ऐप है जैसे हायरेक. आप बहुत सारे स्टार्टअप में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली फाउंडर के साथ आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो मच पावरफुल टूल दैट यू हैव करेंटली, जो कि आज से 2-3 साल पहले स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं था. तो दैट इज वाई द प्लेसमेंट हैज़ बिन बूमिंग इन इंडिया. तो बीटेक के बाद अगर आपको 4 साल वेस्ट करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, व्हाई विल यू बी चूजिंग गेट एग्जाम? तो इस पे अगर मेरा ओपिनियन चाहो तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आपको अगर एक जॉब मिलने का चांसेस है, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हो, देन आई विल हाईली एनकरेज यू फ्रॉम 3rd ईयर इटसेल्फ स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आपको गेट के लिए फोकस करने की भी जरूरत नहीं है. फोकस ऑन गेट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, या फिर आपको रिसर्च में जाना है, आपको रिसर्च पोजीशन में कोई काम करना है जैसे रिसर्च साइंटिस्ट या फिर रिसर्च इंजीनियर पे काम करना है. एंड बिलीव मी, दीज जॉब रोल्स आर नॉट अवेलेबल एज ए फ्रेशर्स. आप बीटेक के बाद इमीडिएटली ये जॉब रोल नहीं पा सकते हो. तो अगर आपको इसी सारे जॉब रोल्स चाहिए या फिर आप चाहते हो आपकी रिसर्च एक प्रोफाइल बनाओ, आप PhD में जाना चाहते हो, उसके बाद आपकी कैरियर करना चाहते हो आपकी एकेडमिक्स पे, तो उसके लिए आप गेट चूज कर सकते हो. आपको लगता है कि यू आर नॉट prepared for the off-campus drive, then do prepare for GATE exam. If you're not interested in coding in some cases, then do prepare your GATE exam. उसके बाद आप GATE क्रैक करके कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो. वहाँ पे भी आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होता है. I'm not saying कि मास्टर्स में अगर आप IIT जाओगे, IISc जाओगे, NITs, IITs, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है. प्लेसमेंट इससे भी बहुत अच्छी होता है. But the quality of the placement you get after your BTech has been drastically increased. So that's why more and more students are going to that trend instead of going for GATE exam. तो बस आज की वीडियो इतना ही. Thanks for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Till then take care and goodbye.